Namaskar once again, and welcome to Euroschool's parenting webinar. I'm very happy to share my learnings with all of you. I'm a passionate educator and have been working in this domain for the last 2 decades, and I find myself blessed to be in such a place where a lovely audience is there, and all of you are there to just listen to me next 40-50 minutes. After that, we'll be having question and answer session. Thank you very much for joining us. And it was exciting and full of learning trip to Japan this year. I have been to more than 15 countries, stayed in the schools, worked with the teachers and students, and learned a lot and tried my best to implement all the learnings in Euro International School here in Sikar. So, as I have shared it many times, and I reiterate again that Euro International School is known for two qualities. And I just request each and everyone who is joining me on this mission that Euro School should be known for empathy and innovations. We are all human beings, and what we need deeper connection. All the teachers, all the parents are requested to have deeper connection with the children so we can rear beautiful human beings. So with that positive note, I would love to start the what I have learned and the PPT here. I have prepared to share in a brief and concise manner my learnings. So the fundamental things which is guiding all the schools and parents over there is children are watching. तो हम भी छोटे छोटे थे तो हमें ये कहते थे कि भगवान ऊपर से देखता है, और जब भी कोई गलत काम करने की मन में आए तो आपको ये दिमाग में रखना है कि भगवान देख रहा है। ये हमें इसलिए सिखाया गया कि हम अवेयर रहें, हम कॉन्शियस रहें कि हम जो कर रहे हैं क्या वो अलाइन है एनवायरनमेंट के साथ में। So in the same manner, the Japanese believe that children are watching, so they behave in a manner they want from the children. और बच्चे कॉपी कैट होते हैं, वो वही करते हैं जो देखते हैं। तो अगर हम भी एज ए पेरेंट्स ये दिमाग में रखें कि हम वही व्यवहार कर रहे हैं, वही आचरण कर रहे हैं जो हमें अपने बच्चों से चाहिए, तो बहुत सारी चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी और हमें फिर वो वर्बल कम्युनिकेशन से वापस बार बार एम्फेसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द एम्फसाइज or they emphasize the importance of being mindful role models, or this is the only way to inspire the next generation. We need to be the role model as a parents and teachers. Rest of the things, I keep on sharing this thing in coming years. What the information they want, they'll be taking it from the machines, and machines will be doing better than us. I think just a moment. So the key pillars of Japanese education model are three. One is knowledge, second is morals, and three is physics. Academic excellence is always respected in every society, in every country, but knowledge must be balanced with practical skills and the skills that can be used in the real world. So the knowledge of the practical aspects of life and the skills, life skills, which are required to lead a successful, happy, content life, we need to strike the balance between academic knowledge, practical skills, and how to use those skills in real world. Second is morals.
they are morally high people, or we can say that Japanese are the society which respect morals at higher level. So what they say, they do it. If they commit कि मैं आपसे 12 बजे मीटिंग के लिए आ जाऊंगा, तो जनरली most of the time they try to reach to the meeting 15 minutes earlier. ये मेरे वहां पे जितना स्टे था उसमें मेरा एक्सपीरियंस था कि मीटिंग्स के लिए जब भी कोई टाइम शेड्यूल होता था तो उससे 15 मिनट पहले सारी चीजें एकदम सुव्यवस्थित होती थी कि जो कमिटेड टाइम है उस पे सारी चीजें हो जाए। बहुत डिसिप्लिन है, ह्यूमन बीइंग्स की अटर रिस्पेक्ट है, दे आर वेरी ऑनेस्ट। आप अगर किसी भी पब्लिक प्लेस पे कोई चीज भूल जाते हैं तो आपको अगले दिन वो चीज वहीं मिल जाएगी, इतनी ऑनेस्टी वहां पे है। इफ वी टॉक अबाउट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, वहां पे सारे के सारे लोग अपने बैग्स में एक पॉली बैग रखते हैं, और जो भी वो कचरा, मान लो कि किसी ने वेफर्स खाई और उसका जो पैकेट है उसको वहां पे थ्रो नहीं करेंगे, वो अपने उसमें रखेंगे, घर ले जाके और जो डस्टबिन हैं उनमें डिस्पोज ऑफ करेंगे। एंड ट्वाइस अ वीक द द कार्स कम टू कलेक्ट द गार्बेज। तो ये कुछ चीजें हैं जो उनकी कम्युनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और मेरे एक मित्र हैं जापान में जिनसे मेरी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा एक्सपीरियंस भी है। दे डिसाइडेड कोविड के दौरान कि हम उतना ही इकट्ठा करेंगे जितना हमें जरूरत है, और वो बराबर सारे लोगों में बंटना चाहिए। तो कोविड के दौरान वहां पे ऐसी कभी स्थिति नहीं हुई कि लोगों ने चीजों को होर्ड करना शुरू कर दिया और कि आज मेरे को तो मेरा सारा मिल जाए, बाकी लोगों का देखा जाएगा। उसने कहा कि ये मैंने मेरी आंखों से देखा कि सबको जितना परमिटेड राशन था वो उतना ही लेके जाते थे और अपने नेक्स्ट टर्न के लिए वेट करते थे। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें किताबी हैं या बातों में हैं, दे प्रैक्टिस इट एंड these things are taught to the students from very early age. And importance to physical health is given very much. Most of the time the students are going to the school by walking or by cycles. वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्कूल में आने जाने के लिए बच्चों को ये इंस्पायर किया जाता है कि या तो वो पैदल चलकर जाएं या वो साइकिल का यूज करें। और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज भी नेक्स्ट लेवल पे हैं, आउटडोर प्ले को वो प्रमोट करते हैं, एक्सरसाइज को वो प्रमोट करते हैं, और मोस्टली पीपल जो हैं दे आर फिजिकली फिट। तो हॉलिस्टिक जो अप्रोच है बच्चे के डेवलपमेंट की, उस पे खूब फोकस वो लोग करते हैं। नेक्स्ट इज एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जो अपने यहाँ इंडियन स्कूल्स में भी काफी देखने को मिलती हैं। पिछले 10 साल में काफी चेंजेस यहाँ पे आए हैं। तो दे इनकॉर्पोरेट हैंड ऑन एक्टिविटी टू मेक लर्निंग फन फिल्ड। तो जैसे वहां पे फार्मिंग पे बहुत एम्फोसिस है, तो इट इज रेगुलर प्रैक्टिस और इट इज द डिफाइंड एक्टिविटी इन the academic calendar to spend at least 4 days in the farms throughout the academic calendar। तो उनको फार्मिंग के एक्सपीरियंस अर्ली एज से करवा दिए जाते हैं। इंटर्नशिप 9th से लेके 12th के जो बच्चे हैं उनको समर ब्रेक में इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है, कॉरपोरेट्स में और स्टार्टअप्स में, जिससे वो वहां जाकर ये समझ पाए कि वो जो पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। हमारे स्कूल में भी हमने ये 3rd ईयर है जब इंटर्नशिप शुरू कर दिया। यूरो इंटरनेशनल स्कूल भी ये करता है, 10th और 12th के जो बच्चे हैं उनको इंटर्नशिप पे भेजते हैं। तो इस बार 10 बच्चों ने अपने स्कूल में ही इंटर्नशिप किया, किसी ने सेल्स में किया, किसी ने मार्केटिंग में किया, किसी ने अपना वीडियो एडिटिंग पे काम किया, किसी ने कंटेंट राइटिंग पे काम किया।
किसी ने फिनांस में काम किया। ऐसे ही हम बाकी जो और हमारे टाई अप्स हैं जिन एंटिटीज के साथ, वहां भी हम बच्चों को भेजते हैं। जैसे कोट विद्या में बच्चे जाते हैं, फनुस्ता में बच्चे जाते हैं, और वो वहां पे एक सीए की फर्म है, उसमें वो बच्चे जाते हैं। मान लो किसी को सीए बनना है, तो वो 11th के बाद में, 12th के बाद में, तो उसको 1 महीने का टाइम मिलता है एग्जाम से नेक्स्ट क्लास के पहले, तब वो जाके ये सीख पाए कि एक्चुअली उसका रोल क्या है। अगर किसी को स्टार्टअप शुरू करना है, तो वो स्टार्टअप में जाके काम करे कि फाउंडर्स की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो उसको कैसे करते हैं। ऐसे ही जापानीज जो कल्चर है, उसमें भी इंटर्नशिप्स को काफी प्रमोट किया जाता है। एंड बीइंग एन एजुकेटर, आई फर्मली बिलीव कि ये गैप भी है कि बच्चा पढ़ता ही रहता है 22-23 साल की उम्र के पड़ाव तक, और उसके बाद में जब वो रियल वर्ल्ड में जाता है, तो उसको दो तरह की चैलेंजेस आते हैं। एक, जो उसने सीखा वो अनरेलेवेंट हो जाता है, टेक्नोलॉजी बड़ी फास्ट इवॉल्व हो रही है। दूसरा, जो उसको सिखाया गया, उसको वहां पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये भी उसके लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो बच्चा अगर ये पहले एक्सपीरियंस ले ले, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग उसमें आ जाएगी। और वो जब लर्निंग उसकी होती है क्लासरूम में, तब वो रिलेट कर पाएगा कि मैंने जब ये प्रॉब्लम फेस की थी, तो उसका ये सोल्यूशन इस नॉलेज से या इस एप्लीकेशन से मेरे को मिल सकता है। तो यहाँ से जो टेक अवे है वो टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, वो ये है कि हम बच्चों को एनकरेज करें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। और दूसरा, उनको वो मौके भी दिए जाएं जब वो अपने नॉलेज को वहां पे इम्प्लीमेंट करके और लर्निंग कर पाए। तो लर्निंग इज नॉट डूइंग समथिंग सक्सेसफुली, वो जब करेंगे, फेल होंगे, तो वहां से भी उनको बहुत सारी लर्निंग्स मिलती हैं। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, तो उनको चैलेंजेस दिए जाते हैं, और ये भी 9th क्लास के बाद में ही शुरू होता है कि एक प्रोजेक्ट उनको दिया गया जिसमें वो कोलैबोरेटिवली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये इनकी एज स्पेसिफिक होती हैं। से फॉर एग्जांपल, हमें अगर अपने स्कूल की बात करें और उसमें एक छोटा सा इवेंट करवाना है जिसमें 50 पेरेंट्स आएंगे, तो एक स्टूडेंट काउंसिल के ग्रुप को ये टास्क दे दिया गया कि आप इस पूरे इवेंट को डिजाइन करो, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन। आप किस किस की मदद लोगे, आपको कितने बजट की जरूरत होगी, आपको क्या क्या कंस्ट्रेंट्स आएंगे, क्या क्या लिमिटेशंस होंगी, उनको आप कैसे सोल्व करोगे। तो ये एक एक एग्जाम्पल है। वैसे ही ये कुछ बड़े इवेंट्स मैनेजमेंट के लिए उनको एक्सपोजर मिलता है, वैसे ही छोटी क्लासेस में भी उनको जैसे डे टू डे एक्टिविटीज है, उसके साथ में कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, और उसको फिर ग्रुप में वो डिस्कस करते हैं एंड दे कम अप विद द सोल्यूशन। सो ये जो एक्सरसाइज है, इट डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो पेरेंट्स को ये हमेशा ही कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को कंफर्ट जोन से निकालें, और उसको ऐसे टास्क दें जो उसके स्टेटस को चैलेंज करें, उसको कुछ नया सोचने का मौका मिले, या उसको नया सोचने के लिए इंस्पायर करे, और वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज लेके आए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट इज लिमिटेड टेक्नोलॉजी यूज। तो आज के ज़माने में ये एक बड़ी समस्या भी हो गई है। मैं बार-बार इस पे बात भी कर रहा हूँ। अभी थोड़े दिन पहले भी रिसर्च आया है कि द नेक्स्ट बिग चैलेंज इज़ गोइंग टू बी मेंटल हेल्थ पैंडेमिक। तो बच्चों का अटेंशन स्पान बहुत कम हो गया है, उनको गुस्सा ज़्यादा आता है, दे फील लोनली, दे फील डिस्कनेक्टेड विद द एनवायरनमेंट जो जस्ट सामने है, उन लोगों से वो कम कनेक्टेड फील करते हैं, और वर्चुअली जो हैं, दे आर कनेक्टेड, बट दे कंपेयर देमसेल्व्स विद अदर पीपल। तो यूएस की सेनेट में तो ये बिल भी अभी रखा गया है कि 18 साल की उम्र से पहले बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा जाए। और जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, लाइफ कोचेस हैं, मेंटर्स हैं, वो इस चीज को भांपते हुए
अब पिछले 6 महीने में सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव भी हुए हैं। इस पे एक बहुत अच्छी बुक भी एक लाइफ कोच ने लिखी है। और everybody is talking about the side effects of excessive use of technology और स्क्रीन टाइम। तो वहां पे ये कल्चर है कि वो आउटडोर एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं और स्क्रीन टाइम जो है वो कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चों को रियल वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ खेलने का, इंटरेक्ट करने का, एक का ये बड़ा एक सुदृढ़ क्या कहते हैं, सुदृढ़ पिलर है कि जहाँ पे हम अभी भी जॉइंट फैमिलीज में रह रहे हैं, हम वेल कनेक्टेड हैं। ये हमारे लिए एक बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है इंडियन सोसाइटी का, इंडियन कल्चर का, कि वी फर्मली बिलीव इन फैमिली इंस्टीट्यूशंस। तो हमें इसको बचा के रखना है। जब तक परिवार एक साथ हैं, तब तक बच्चों को एक कंफर्ट मिलता है, एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि देयर इज समबडी विथ होम आई कैन शेयर द थिंग्स, और वो लोनली फील नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक रीजनेबल स्क्रीन टाइम उनका हो, ये इंश्योर किया जाए। उसके लिए नो टेक्नोलॉजी डे भी हम कर सकते हैं कि हम ये करें कि हम संडे को यूज नहीं करेंगे मोबाइल्स या टीवी, या हम इवनिंग के ये 3-4 आवर्स में व्हेन एवरीबडी इज देयर एट होम हम फोन यूज नहीं करेंगे, या हम टीवी पे टीवी नहीं देखेंगे, हम सिर्फ आउटडोर एक्टिविटी करेंगे, या हम बात करेंगे, या हम कुछ भी खेल सकते हैं। ऐसे ऐसे खेल हम एक दूसरे के साथ बैठ के खेल सकते हैं जिसमें हम सारे के सारे लोग इन्वॉल्व हों और हम इंटरकनेक्टेड फील करें, और हम एक दूसरे को वो अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की बैंडविड्थ मिल जाती है उसमें। और वैसे भी बच्चों को आउटडोर प्ले के लिए तो एनकरेज करना ही चाहिए, जिससे उनका जो फिजिकल ग्रोथ है वो भी प्रॉपर होता रहे। इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक चीज मैंने बड़े अच्छे से वहाँ के कल्चर में फील भी की, और मुझे ये लगा कि इस मामले में पिछले 15 साल में हमने थोड़ी सी चूक की है। इंडियन कल्चर की बात करें तो यहाँ की सिचुएशंस भी कुछ अलग हैं। जैसे अगर हम सेफ्टी रूल्स की बात करें तो वहाँ पे अगर ग्रीन लाइट है, तो रात को अगर एक भी वजह है और वहां पे कोई नहीं है देखने वाला, तो वो लाइट्स को फॉलो करते हैं। ग्रीन लाइट होगा तभी वो उसको क्रॉस करेंगे। अगर रेड लाइट है, कोई भी नहीं देख रहा है, कैमरा है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वेट करेंगे। और even everyone, there is no VIP culture to follow the rules and regulations over there। ये सबके लिए वहां पे समान है, और सारे लोग इस चीज का रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो वहां पे उन्होंने इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया कि सेफ्टी उनको है वहां पे। अपने यहाँ पे कि ये चैलेंज है, मान लो कि हम 3 किलोमीटर भी अगर बच्चे को पैदल या साइकिल से भेजने का सोचते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि सेफ पहुंच जाएगा क्या। तो उसके पीछे जो ड्राइविंग सेंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट ड्राइविंग है, रोड पे चलने की जो सेंसिबिलिटी है, ये कुछ सारी चीजें हैं जो अपने यहाँ पे थोड़ी मिसिंग है। उसके चलते एक डर रहता है, लेकिन वहां पे उन लोगों की ये एक प्लस पॉइंट है कि उनको रिच इंफ्रा है, सेफ्टी है। तो वो ये एनकरेज करते हैं बच्चों को कि आप पैदल स्कूल जाएं, आप अपने बैग कैरी करें, अपनी बिलोंगिंग्स का वो ध्यान रखें, और वो बहुत अच्छे से करते हैं। मैं टोक्यो से जब क्योटो जा रहा था, तो एक एक स्कूल का पूरा ट्रिप था जो हमारे साथ उस बुलेट ट्रेन में गया था। तो आप विश्वास करें कि लगभग 70 to 80 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्कूल वर देयर। और एक ट्रेन वहां पे मात्र 3 मिनट के लिए रुकती है। उस 3 मिनट में वो 70 जो स्टूडेंट्स हैं, वो सिर्फ 2 बोगी में उनको चढ़ना था। दे लाइंड अप वेल बिफोर द ट्रेन केम टू द प्लेटफॉर्म, और उनमें 70 बच्चों पे सिर्फ
दो ही टीचर उनके वहां पे थे जो उनको पहले ही उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया, एंड इन द 3 मिनट्स दे बोर्डेड द ट्रेन, और कोई अफरा तफरी का माहौल वहां पे नहीं था। तो ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है। जब हम भी इन बच्चों को फील्ड ट्रिप्स के लिए लेके जाते हैं या इनकी विजिट्स के लिए लेके जाते हैं, तो हमारे लिए ये बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है। 10th का बच्चा है, 10th के बच्चे के पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा एंक्सियस हैं कि उसने खाना खाया क्या, टाइम पे सोया क्या, सब कुछ ठीक तो है क्या। तो ये कंसर्न्स वाजिब है, आई रिस्पेक्ट दिस थिंग। लेकिन ये कंसर्न्स, ये केयरिंग, ये काइंडनेस, ये कंसिडरेशन कब हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग में कन्वर्ट हो जाती है हमें पता नहीं चलता। और इसके बड़े साइड इफेक्ट आते हैं। पिछले 2-3 महीने में जब 10th का रिजल्ट आने के बाद में 11th क्लास की एडमिशन्स की बात चल रही है, या उससे पहले भी जो बच्चे 11th क्लास में एडमिशन ले रहे हैं, तो ये इस साल का मेरा ऑब्जर्वेशन है कि बच्चे 10th के बाद में जब अपने सब्जेक्ट ले रहे हैं, तब भी दे आर नॉट डूइंग देयर ओन रिसर्च। आप एक जीवन का बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हो, लेकिन आप अपना रिसर्च नहीं कर रहे। कम से कम 1 घंटा भी बैठ के आप इंटरनेट पे पूरा अपना रिसर्च कर लें कि मेरे को साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है कि ह्यूमैनिटीज लेनी है, उसमें क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या करियर ऑप्शंस हैं। आज के जमाने में इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि उनका कोई डिसीजन दूसरा ले ले। एंड वो दूसरा कौन है? वो पेरेंट्स हैं, बिकॉज अब तक पेरेंट्स ही उनके डिसीजन लेते आए हैं। लेकिन ये एक बहुत क्रूशियल डिसीजन है, जिसमें अगर बच्चे ने किसी इन्फ्लुएंस में वो काम कर लिया, तो बाद में जाके उसको बड़ा रिपेंटेंस होता है कि यार मेरे को तो ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, या मेरा तो ये इंटरेस्ट ही नहीं है, या मेरे को तो कहीं और जाना था। तो अगर बच्चा 6th क्लास से ही ये थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू करे कि मेरे को किस चीज में इंटरेस्ट है। देर इज अ रिसर्च ऑल्सो कि 8 साल से 14 साल की जो उम्र है वो बहुत सही उम्र होती है इस फैसले की तरफ कदम बढ़ाने के लिए। और वो उम्र होती है जब बच्चों को एक इनर गोल होती है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, और वो अलग अलग चीजों पे अपने हैंड्स ट्राई करते हैं। और जब वो अपना हाथ आजमाते हैं अलग अलग इंटरेस्ट पे, कोई पेंटिंग करता है, कोई डांस करता है, कोई कोई सिंगिंग करता है, कोई साइकिलिंग करता है, और जब उनको धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ते हैं, तो रियलाइज होता है कि हाँ, आई एम बोर्न फॉर इट। और हर फील्ड में करियर है। तो ये एक हैबिट है, हैबिट ऑफ टेकिंग डिसीजंस। बट दे विल टेक डिसीजंस व्हेन दे आर गिवन द चांस। अगर उनको वो मौके ही नहीं दिए गए, तो वो डिसीजन लेना सीखेंगे नहीं, और फिर वो डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी। और ये डिपेंडेंसी बहुत लेट तक भी होती है। मैंने देखा है कि जनरली शादी के बाद तक भी ये स्थितियां रहती हैं कि छोटे छोटे डिसीजन के लिए बच्चे जो हैं पेरेंट्स को पूछते हैं कि ये कैसे करूं। इवन इवन स्मॉलेस्ट थिंग ऑफ गेटिंग अ ड्रेस, और गेटिंग अ फ्रिज और अ टीवी इन अ न्यू हाउस। तो ये चीजें फिर उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करती। तो उन बच्चों को शुरुआत से ही ये सिखाया जाता है, और हम भी ये कर सकते हैं। सिंपली अगर मैं मेरे पेरेंट्स की बात करूं, तो मेरे को एक बड़ी अच्छी चीज याद आती है। जब मैं 6th क्लास में था, तो 6th क्लास ऑनवर्ड्स कि पिताजी जब हमें बाजार लेकर जाते थे, तो ये कहते थे कि आप अपनी पसंद के कपड़े ले लो। तो वहां से ही वो एक डिसीजन लेना आ गया, और अपने मेरे को कौन से कपड़े पहनने हैं, मेरे पे क्या सुंदर लगेगा, वो मैंने उसको समझना शुरू कर दिया। वैसे ही जैसे मान लो हम अभी बच्चे को लेके जाते हैं शॉपिंग मॉल पे, और बच्चा कहता है कि मेरे को पॉपकॉर्न खाने हैं, तो आप उसको जब साथ लेके जाते हैं, तो उसको बोलो कि आप पॉपकॉर्न खरीद लो। देर आर 3 ऑप्शंस, स्मॉल, मीडियम एंड बिग वन। आप बोलो कि आपको कौन सा लेना है। हो सकता है उसको समझ में ही नहीं आए, इस बार वो लार्ज वाला ले ले लालच में आके, लेकिन उसको पता चलेगा कि यार मैं तो इसको फिनिश ही नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट टाइम जब वो जाएगा, तो वो देखेगा कि लार्ज, मीडियम या स्मॉल लेना है, क्योंकि मैंने जब पिछली बार लार्ज लिया था, आई वॉज नॉट एबल टू फिनिश इट। तो हमने उसको वो डिसीजन मेकिंग सिखा दिया। उसको पेमेंट करना है, तो आप उसको कह सकते हो कि दिस इज 50 रुपीज नोट एंड यू कैन डू इट। तो उस बच्चे को वो भी एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है कि
₹20 का है, ₹50 मेरे को दिए हैं पेरेंट्स ने, मैं वापस दूँगा, मेरे को ₹30 वापस मिलेंगे। और वो जब सोचता है तो उसकी थॉट प्रोसेस भी डेवलप होती है। तो उनकी एज स्पेसिफिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो उनको दी जाएँ। तो सिंपली अगर हम नर्सरी से भी बात करें, तो नर्सरी के बच्चे को सिंपली जब वो घर पे आता है, तो शूज़ उतार के कहाँ रखने हैं, बैग कहाँ रखना है, खाना खा के अपनी प्लेट कहाँ पे रखनी है। आपने प्लेट उठा ली तो पीछे डाइनिंग टेबल या आप ज़मीन पे आसन लगा के बैठे हो, तो उस जगह को साफ करना है। अगर चावल के कुछ दाने गिर गए, सब्जी का कुछ पीस गिर गया, उसको उठा के प्लेट में रखना है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हम उनको शुरुआती अ, उम्र से ही सिखा सकते हैं और वो धीरे-धीरे उनको बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए भी तैयार कर सकते हैं। सेंसिटिविटी एंड क्लीनलीनेस जो मैं अभी बात कर रहा था, वहाँ पे प्री क्लास ऑनवर्ड्स ही बच्चों में ये हैबिट डेवलप कर दी जाती है। तो मुझे याद आ रहा है कि मैं जब फ़िनलैंड जाके आया था 2017 में, तो वहाँ भी ये एक ट्रेडिशन है कि बच्चों को हाइजीन के लिए सेंसिटाइज़ किया जाता है और क्लासरूम साफ करना, उनको अलग-अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि कभी वो कॉमन एरिया की सफाई करेंगे, कभी वो क्लासेस की सफाई करेंगे, कभी अपने लाइब्रेरी में जाके बुक्स को वो ढंग से अरेंज करेंगे। तो मैंने भी आके यहाँ पे बच्चों को मेरे साथ लगाया। उस दिन मैं अकेले, ऐसा नहीं था कि बच्चों को मैंने इंस्ट्रक्शन दिए थे। मैंने बच्चों को साथ लगाया कि चलो आज अपन उस ग्राउंड की सफाई करते हैं, उस जिस ग्राउंड में हम खेलते हैं। उस दिन रात को मेरे पास 5 फ़ोन आए कि हम इतना पैसा इसलिए थोड़ी देते हैं कि आप बच्चों से सफाई करवाओ। और मुझे उन पेरेंट्स को ये समझाना पड़ा कि इसके पीछे कारण ये है कि मेरे पास स्वीपर्स तो पूरे हैं, लेकिन इनको ये आदत भी डालनी ज़रूरी है कि हम जहाँ पे रहते हैं, उस जगह की सफाई करनी है। तो कई बार एज़ इट इज़ चीज़ों को हम लाके कॉपी नहीं कर सकते। हमें वो चीज़ें पहले एक कंसेंसस भी डेवलप करना होता है। ये चीज़ मेरे को उस वक़्त समझ में आई। कि हम जो भी करना चाहते हैं, अगर हमें लगता है कि वो सबके फ़ायदे की चीज़ है, वो अच्छा भी है, लेकिन वो सहमति से होना चाहिए। तो कोई भी नया इनिशिएटिव अगर लें और उसमें पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन हो और अगर पेरेंट्स का साथ मिल जाए, तो उसके अलग रिज़ल्ट होंगे और उसका अलग ही आनंद होगा। तो अ, सेंसिटिविटी फॉर ईच अदर्स नीड्स। तो वहाँ पे जापान की अगर अपन बात करें, तो धर्म के नाम पे वहाँ पे बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसको मैक्सिमम लोग मानते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव फेथ इन मदर नेचर कि अगर हमारी जो लाइफ है, वो नेचर के साथ अलाइन्ड है, तो वो सब कुछ सही ही है। जैसे पाप पुण्य की अगर हम बात करें, तो वो पाप उसी को मानते हैं जो प्रकृति के खिलाफ जाके कोई बात होती है। और ये मैंने वहाँ पे ऑब्ज़र्व भी किया कि अ, एयरपोर्ट पे एक बहुत बड़ा-सा पेड़ है, लेकिन उस एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए उन्होंने उस पेड़ को काटा नहीं। उसको चारों तरफ से नेट से कवर कर दिया। उन्होंने सेफ्टी को भी इंश्योर कर दिया और उस पेड़ को रखते हुए ही उन्होंने ये सब कुछ डिज़ाइन कर दिया। फूजी किंडरगार्टन जो प्री स्कूल है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्री स्कूल इन द वर्ल्ड। तो उसमें उस जगह पे जितने भी पेड़ थे, उन पेड़ों के चारों तरफ ही स्कूल को उन्होंने डिज़ाइन कर दिया और उन पेड़ों को उन्होंने काटा नहीं। तो ये कोशिश करते हैं कि किसी भी डेवलपमेंट के काम में प्रकृति का नुकसान कम से कम हो। ये सेंसिटिविटी वो डेवलप कर देते हैं बच्चों में शुरू से ही। और हाइजीन की बात मैंने पहले भी बताई और उनको ये शुरू से उनकी ये हैबिट भी फ़ॉर्म की जाती है कि आप जहाँ भी बैठते हो, अपने चारों तरफ साफ-सफाई रखें। और इतने देशों की जो मेरी यात्रा है, उसमें अगर अपन रैंक दें सफाई में, तो निश्चित तौर पे जापान को नंबर 1 मिलेगा। आपको कहीं पे इवन जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, यूएस की बात करें, यूके की बात करें, यूरोप की बात करें, तो
बाकी सब कुछ सही है, साफ सुथरा है, लेकिन जो पब्लिक प्लेसेस है उसके आसपास आपको सिगरेट के बर्ड्स जो है वो बिखरे हुए मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप 10 किलोमीटर भी रोड पे चल लो, आपको कहीं पे एक दिन का भी नहीं मिलेगा। और ये चीजें फोर्स नहीं की जा सकती, ये चीजें अंदर से ही आती हैं। तो उनके वैल्यूज को उन्होंने इतना स्ट्रांगली डीपली इनकॉर्पोरेट कर दिया कि वो ऑटोमेटेड हो गया, उसके लिए उनको कोई पेनल्टी की जरूरत नहीं है, और दे आर वेरी मच केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। तो टोक्यो से क्योटो की जो जर्नी है वो बुलेट ट्रेन से 2 घंटे की है। अब उस ट्रेन में सीट पे ये लिखा हुआ है कि इस दौरान आप अपने फोन का यूज नहीं करेंगे। अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं या गाना सुन रहे हैं तो आप ईयर प्लग का यूज करेंगे। आप ऊंची आवाज में बात करके दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो हमारा जो कोच था, मतलब वो ट्रेन का जो कोच था, उसमें लगभग हम 40 पीपल वर दे टुगेदर। और उस 2 घंटे की यात्रा में मैंने किसी को फोन यूज करते हुए नहीं देखा, जो कि जोर जोर से बात कर रहा है या बिना ईयर प्लग के लाउड म्यूजिक चला के सुन रहा है, जिससे दूसरे लोगों को डिस्टरबेंस होती है। हमारे यहाँ इवन एयरपोर्ट्स पे भी ये कॉमन सीन है कि वेटिंग लॉबी में हम 20 जने बैठे हैं, कोई जना सोशल मीडिया पे बहुत जोर जोर से ऐसे रील या वीडियो चला रहा है जो दूसरे लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, बट वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू दिस थिंग। तो ये मैंने वहां पे बड़ा कीनली ऑब्जर्व किया कि दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग। तो ये थोड़ी ये चीजें तो हम शुरुआती दौर से ही बच्चों को सिखाना शुरू कर सकते हैं कि जितना हमें अपने कंफर्ट की चिंता है, उतना ही हमें दूसरे लोगों के कंफर्ट की भी चिंता करनी चाहिए। तो एम्पथी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स ये बहुत जरूरी है। मैंने एम्पथी वापस पहले भी बोला कि हमारी जो स्कूल की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें एक इंपॉर्टेंट एम्पथी है। अगर हम एम्पथेटिक हो गए तो बहुत सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो हैं वो तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। सो नर्चरिंग कॉन्फिडेंस, confidence comes from learning that I am capable of doing something, कि मैं कुछ कर सकता हूं। और वो जब करने का भाव कब आता है, जब उसको मौका मिलेगा। मान लो जब बच्चा पहली बार साइकिल चलाता है तो वो गिरता भी है। अब वो जब पेडल मार रहा है उसको एक मौका दिया जाए कि वो इंडिपेंडेंटली उस साइकिल को ट्राई करे। अगर हम उसको ओवर प्रोटेक्ट करते जाएंगे तो वो गिरेगा नहीं। और साइकिल सबने सीखी है, साइकिल बिना गिरे सीख नहीं सकते। और वैसे ही सारी चीजें हैं लाइफ में। हम अगर ग्रो करना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं, तो फेल तो होंगे। लेकिन अगर हम घर बैठे रहेंगे, हम ट्राई नहीं करेंगे, तो हम फेल भी नहीं होंगे, तो हम सीखेंगे भी नहीं। तो वो first step is to try, learn, fail, learn again and then grow। और जब हम एक छोटा सा कदम भी उठा के कुछ सीखते हैं तो अंदर से सेंस ऑफ वर्दीनेस आती है कि यस आई कैन डू इट। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम उनको वो एनवायरनमेंट दें, उनको हम वो प्लेटफॉर्म दें जहां पे वो एक्सपेरिमेंटेशन कर सके और कुछ सीख सके। सेलिब्रेट योर चाइल्ड्स अचीवमेंट, बिग और स्मॉल। हर छोटी छोटी चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। बच्चे ने स्कूल में एक पेंटिंग बनाई और घर पे आते ही सबसे पहले वो ये दिखाना चाहेगा कि मैंने आज क्या क्रिएट किया है। दिस इज वेरी नेचुरल अर्ज इन ह्यूमन बीइंग्स। हम जो भी करते हैं वो हम बांटना चाहते हैं। तो बच्चा घर पे जब दौड़ते दौड़ते आता है बैग लेके निकाल के कि देखो मैंने आज ये आर्ट की शीट बनाई, और उसको एक तरीका है जो उसको पैट करके कहे कि वाओ यू हैव डन अमेजिंग जॉब, आई एम प्राउड ऑफ यू, कीप ऑन डूइंग इट। और दूसरा ये है कि चल तू रख इसको और खाना खा ले। तो वो एक छोटा सा जो जेस्चर है वो उसको ये इंस्टिल करेगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया और मुझे वापस ट्राई करना चाहिए। आई नीड टू प्रोड्यूस मोर क्रिएटिव आर्ट पीसेस। ऐसे ही हर डोमेन में हम बच्चे को एनकरेज कर सकते हैं। Encourage them to try new things, step outside their comfort zone and embrace challenges। मैंने पहले भी ये डिस्कस किया
कि हम उनको मौके देंगे, तब ही वो कुछ सीख पाएंगे और वो अपने कंफर्ट जोन से निकलें और कुछ नया ट्राई करें और फेल हों और सीखें। ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमें क्रिएट करनी है। अगर अपने इंडियन सोसाइटी में अगर देखें कि एक बड़ी शादी में हम जा रहे हैं, तो सिंपली बच्चे के साथ रह के उसको ये कहा जा सकता है कि आप अपना खाना पसंद का चुन के और खाओ, इंस्टेड ऑफ हम उसके लिए प्लेट में पूरा सजा के लाके रख दें और उसमें से वो कुछ खाए और कुछ छोड़े। ये कॉमन सिनारियो है। तो हम छोटा सा चेंज कर दें कि आई एम देयर विथ यू, आई विल हेल्प यू, बट यू पिक द फूड यू वांट टू ईट। अब ये सोचने में देखने में बहुत छोटी सी एक्टिविटी है, लेकिन ये उसको सोचने के लिए प्रेरित करेगी कि मेरे को क्या खाना है। देर आर सो मेनी ऑप्शन, 10-15 डिशेज आर अवेलेबल। क्या छोड़ना है और क्या प्लेट में रखना है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो इस छोटी सी एक्टिविटी से बच्चा सीख सकता है। हेल्प देम सी मिस्टेक एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। हर जो गलती है वो एक अवसर है सीखने का। बच्चा जब गलती करेगा तो वो एनालाइज करेगा कि यार ऐसा क्या गलत हुआ जिससे मैं इस स्थिति में आया। तो वो सेल्फ एनालिसिस करके और सीखता है। तो ये उसकी हैबिट है और यही ग्रोथ पाथ है कि हमने जो किया, अच्छा किया तो भी हमें सीखना है कि इसको वापस, इसमें क्या था जो मेरे को आगे रिपीट करना है और इसमें क्या था जो मेरे को छोड़ना है। फोस्टरिंग इंडिपेंडेंस, तो कॉन्फिडेंस आएगा तो बच्चा इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाएगा। उनको अपनी एज अप्रोप्रिएट चॉइसेस हैं। जैसे एक पिक्चर भी ये बड़ी सुंदर सी है जिसमें एक बच्चा कुछ अपने कपड़े निकाल रहा है। जैसे अपने आज मेरे को अगर कहीं अलग किसी पार्टी में जाना है, या आज मेरा स्कूल का यूनिफॉर्म का ऑफ है, या मेरे को ऐसे ही जनरल पास वाली दुकान पे कुछ खरीदने के लिए जाना है, मैं क्या पहन के निकलूं, ये मेरी चॉइस होनी चाहिए। और यही हमें बच्चों को सिखाना है। तो जब हम उनको मौका देंगे, वो जब पहन के निकलेंगे, उनको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा या उनको क्रिटिसाइज किया जाएगा, तो वहां से उसकी लर्निंग होगी। जैसे वो बफे वाला मैंने एक एग्जांपल दिया कि वो खाना खा रहा है तो उसको वो अपॉर्चुनिटी दी जाए। से फॉर एग्जांपल हम रेस्टोरेंट में गए और रेस्टोरेंट में जाके हमने जो मेनू कार्ड है वो बच्चे को दे दिया कि यू जस्ट चूज व्हाट डू यू वांट टू ईट। तो ये अपॉर्चुनिटीज हैं जो उनको चॉइसेस क्रिएट करने के लिए मिलेंगी और वो फिर अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। पिछले 2 दशक की मेरा एक अनुभव है, जो बच्चे अपनी पसंद से सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं और निकल जाते हैं, उनका एक अलग तरीका है। कुछ बच्चे जिनको पेरेंट्स ने फोर्स किया होता है और अगर वो फेल होते हैं, तो 95% ऑफ द टाइम द स्टूडेंट सेज कि पेरेंट्स को कि मम्मी आपने ही तो बोला था, पापा आपने ही तो बोला था। और हुआ क्या, दे डिडंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिसीजन, क्योंकि उन्होंने वो डिसीजन ही नहीं लिया। somebody else took the decision for the child, that's why they didn't take the responsibility of that decision। और ये हैबिट है, ये प्रैक्टिस है और ये बड़े शुरुआती उम्र से ही बच्चे को सिखानी होती है। हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर ये लगता है कि इस चॉइस से कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, तो वी प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट, बट अवॉइड ओवर प्रोटेक्टिंग देम फॉर और माइक्रो मैनेजिंग देयर थिंग्स। कि उनको जो करना है, जैसे मान लो समर ब्रेक है, नानी के घर जाना है या हम घूमने जा रहे हैं, तो एक तो हम उनका बैग पैक करके दें, एक हम ये कहें कि चलो मिलके एक लिस्ट बनाते हैं कि हमारे इस 7 दिन के ट्रिप में क्या क्या चीजों की जरूरत रहेगी। तो वो बच्चा वहां पे ऐड करेगा कि मेरे को भी मेरा ब्रश चाहिए, मेरे को भी मेरे शूज चाहिए। फिर अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो वो भी सोचेगा कि यार मेरे को भी मेडिसिन लेनी है कि नहीं लेनी। तो वो सोचना शुरू करेगा और आप उसको उस डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बना सकते हैं। तो वो कंट्रीब्यूट भी करेगा। मान लो आपने 5 बैग पैक कर लिए, उसका एक छोटा बैग है, अगर वो बैग उस बच्चे ने खुद ने पैक किया है, तो उस पूरी जर्नी में उसको वो कैरी भी करेगा, क्योंकि वो उसकी साइज के लिए अप्रोप्रिएट है। उसने उस बैग को चुना है, उस बैग में क्या रखा है वो उसको पता है, तो उस बैग को वो लेके पूरे ट्रिप में घूमेगा। और
और अपने बिलोंगिंग्स का ध्यान रखना सीख जाएगा। एनकरेज देम टू एक्सप्लोर देयर इंटरेस्ट एंड पैशन इंडिपेंडेंटली। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा मिस हुआ है और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट अब देखने को मिल रहे हैं। वीक में एक दो आदमी मेरे पास ऐसे मिल जाते हैं ऑफिस में जो किसी भी अलग डोमेन में है। वो ये कहते हैं कि मैं 10 साल से इस डोमेन में हूँ बट आई एम लूजिंग माई इंटरेस्ट। मैं अब कुछ और करना चाहता हूँ। मैं जो कर रहा हूँ उससे मेरे को एक्साइटमेंट नहीं मिल रहा, मेरे को वो किक नहीं मिल रहा। मैं पैसा तो बहुत कमा रहा हूँ लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मैं 20 साल से एजुकेशन में हूँ और मुझे जब भी इंटरेक्शन का मौका मिलता है तो मेरे गूज बम्स आ जाते हैं। मेरे को कोई नया बच्चा मिलता है तो मेरे को देख के ये लगता है कि मैंने जो सीखा मैं इसको कैसे पोर करूं इसमें। ये क्यों है? क्योंकि मेरा पैशन और प्रोफेशन अलाइंड है। And I realized early कि I'm a passionate educator and I'm born for this thing and I've been enjoying through 20 years. मुझे कभी ऐसा याद नहीं आता कि ऐसे मन में आया हो कि अरे यार कल मंडे स्कूल जाना पड़ेगा। नेवर। मेरे को हमेशा ये एक्साइटमेंट रहता है कि मैं जाऊंगा बच्चों में जाके बड़ा खुश मैं अपने आप को फील करता हूँ। और कोविड के उस 1 डेढ़ साल में जब आई वॉज अवे, स्कूल शुरू करने के बाद में 17 18 साल तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि इतने लंबे टाइम तक मैं बच्चों के साथ नहीं था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग कोविड व्हेन 6 7 मंथ्स आई वाज अवे फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अंदर से बहुत खुश नहीं रहता था। और जैसे स्कूल शुरू हुआ बच्चे आने लग गए तो उनकी अलग पॉजिटिव वाइब्स होती हैं बच्चों की। तो मुझे बड़ा आनंद आया। मैं ये इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि ये रिकॉग्नाइज कर पाया इसलिए मैं इसको एंजॉय कर रहा हूं। अगर हम अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि वो अपने पैशन को रिकॉग्नाइज करें और पैशन और प्रोफेशन को अलाइन कर लें तो जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। बिल्डिंग resilience. Resilience is the ability to bounce back with double force। जब भी हार का सामना करना पड़े तो हम ये कहें कि हम जीतने के लिए पैदा हुए, हारने के लिए पैदा नहीं हुए। तो वो एक एक हैबिट है, दैट इज द मैसेज टू द ब्रेन। और न्यूरो साइंस ये कहती है कि जब हम बार बार ब्रेन को मैसेज देते हैं तो वो वैसे ही चलना शुरू हो जाता है। तो रेजिलियंस इज मसल बिल्डिंग कि नहीं, अगर मैं हार गया मैं खड़ा हो जाऊंगा, वापस दौड़ूंगा, वापस इसको अचीव करूंगा। और ये हम बड़े अच्छे से प्रकृति में इतने एलिमेंट्स हैं उनसे सीख सकते हैं। टीच योर चाइल्ड टू व्यू ऑब्स्टिकल्स एज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग। जब भी कोई बाधा आए तो हम ये सिखाएं कि ये बाधा जो है ये आपको टेस्ट करने के लिए है, ये आपको रोकने के लिए नहीं है। ये आपको ये मोटिवेट करेगी कि इस बाधा को पार करने के लिए आपको अंदर से और एनर्जी चाहिए, आपको डिटर्मिनेशन चाहिए, आपको कुछ और स्किल्स चाहिए जिनको आपको सीखना है और इस ऑब्स्टिकल को पार करके नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ पे आपको जाना है। Help them develop problem solving, a positive mindset, and the ability to cope with adversity. A human mind can achieve what it can perceive। वो ये जो सोच सकता है वो पूरा कर सकता है। तो जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं वो हमें हमारे एनवायरनमेंट से ही मिलते हैं। बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दिया जाए कि जो भी आप सोचोगे वो पूरा किया जा सकता है अगर उससे पहले की प्रिपरेशन आपने कर ली। तो वो उस प्रिपरेशन के साथ अगर मैदान में जाएगा तो जरूर फतेह करेगा। द पावर ऑफ एग्जाम्पल। रिमेंबर चिल्ड्रन आर वॉचिंग। what we expect from our children we should do that। चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे रीडिंग बुक है, हैविंग कनेक्शन इन द फैमिली है, मेडिटेशन है, स्पेंडिंग टाइम विद मदर नेचर है, or we want to take risk in life, we'll have to set the example। Yes, by taking calculated risk we can grow exponentially। so be the kind of person you want your child to become। Model confidence, independence, resilience, compassion and other positive qualities जो अगर हम में है तो बच्चा देख देख के धीरे धीरे उन चीजों को पिक कर लेगा। एंड योर
एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये तो है ही। हम जो करते हैं और जो बोलते हैं, अगर उसमें अंतर है तो उस बोलने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। So it's 4:49 and this question and answer session. For the next 10 minutes, feel free to ask any question. You can drop your question in the chat box. I'll read it out and would love to answer. Please share the whole audio and mail. I will listen proper again and try to do as you guide. Ashish, I would request to share the recording of this webinar with the parents so they can take their own time and do something. Yes, sir, you can drop the message so we can answer it. You have raised your hand. Please drop the message, drop the question. अगर बच्चा 6 साल का है तो उसके मोबाइल की हैबिट कैसे हटाएं? तो अगर आप मेरे को देख पा रहे हैं, कल भी ये डिस्कशन था। सिंपल है। मेरे 2 हाथ हैं, मेरे एक हाथ में एयरपोर्ट का केस है और मेरे एक हाथ में मोबाइल है। अब अगर मेरे को किसी चीज की वर्थ लगती है, मेरे को प्यास लगी है और मेरे को पानी पीना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं मोबाइल को छोड़ूंगा, ग्लास को उठाऊंगा और पानी पीऊंगा, क्योंकि मेरे को प्यास लगी है। पानी की अहमियत मुझे पता है, इसलिए मैं इस मोबाइल को छोड़ूंगा और पानी पीऊंगा। हमें ये कहने से पहले कि आपको मोबाइल छोड़ना है, ये बताना पड़ेगा कि क्या पकड़ना है, और वो इतना इंटरेस्टिंग हो कि वो मोबाइल को छोड़ दें। यही एक तरीका मुझे तो समझ में आया है। थैंक यू वेरी मच सरिता फॉर काइंड वर्ड्स। Okay, the information is shared to join the link, and you can get the link of the webinar, recording of that. Neeraj is there. How can we teach the kids to value things, their belongings, or any learnings? It's very simple. If we start doing it, they'll do it. जैसे उनकी बिलोंगिंग्स हैं, अगर हम घर पे जाके शूज बेतरतीब उतारते हैं, हम हमारे कपड़े ऐसे ही बेड पे फेंक देते हैं, और कोई घर वाला उठा के उसको टांग रहा है, या हमने डिनर टेबल पे प्लेट छोड़ दी और हैंड वॉश करके चले गए, तो बच्चा वो सारी चीजें देख रहा है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग अ लॉट, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हम ऐसा कर सकते हैं। मैं अपने जीवन का अनुभव बता सकता हूँ इस बारे में। आई वॉन्टेड टू एनकरेज माई चाइल्ड फॉर एक्सरसाइज एंड मॉर्निंग वॉक। तो हमने कोविड के दौरान साथ में वॉक करना शुरू कर दिया कि चलो हम वॉक करके आते हैं। और जब हम वॉक करने गए तो मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करने शुरू कर दिए। तो उसको वॉक में कम इंटरेस्ट आता था, मेरी बातों में ज्यादा आता था। तो उसने वॉक करना शुरू कर दिया। अब उसको उसका आनंद आना शुरू हो गया। उसको आनंद आना शुरू हो गया तो मैं भी वॉक पे नहीं जाता, तो वो करता है। जैसे आज सुबह उठ के वो 4 बजे उठ के और हर्ष पे हाइकिंग के लिए चला गया, और मैं तो लेट तक सो रहा था। तो उसको वो अब आदत पड़ गई, उसको वो पता चलने लग गया, तो वो करने लग गया। सिंपल है। थैंक यू वेरी मच। निखिल जी कह रहे हैं कि जापानीज गवर्नमेंट इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, व्हाई इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग ऑन दिस। आप मेरे को कभी एमपी बनाना, मैं पार्लियामेंट में जाऊं और फिर ये बात बता पाऊं कि इंडियन गवर्नमेंट कैसे नहीं कर रही है। जो just joking, I'm not interested into politics as of now. For the next 20 years I'm not joining politics. So you should ask your MP कि गवर्नमेंट पैसा क्यों नहीं लगा रही है। डॉक्टर महेंद्र ये कह रहे हैं, हाउ टू लेवल अप माय चाइल्ड्स एंड्योरेंस अबाउट पेन, ही डजंट कॉप अप विद द पेन। एक्सरसाइज इज अ वेरी गुड टूल। बच्चा जब एक्सरसाइज करना शुरू करता है, जैसे मान लो क्या एज है मुझे नहीं पता डॉक्टर महेंद्र जी, लेकिन अगर छोटा बच्चा है 6-7 साल का है तो उसको
साइकिलिंग करनी शुरू करनी चाहिए, उसको पकड़म पकड़ाई खेलनी चाहिए, उसको लंगड़ी टांग खेलनी चाहिए। अगर वो गिरेगा तो उसको दर्द होगा, उसको 11 ईयर्स है तो ये सबसे सही है, वो साइकिलिंग करना शुरू करे, स्केटिंग करे, दौड़ना शुरू करे। तो इंसिडेंटली जब हम उसको, वो ये सब करेगा तो गिरेगा और उसको दर्द भी होगा, और उसके लिए एंड्योरेंस धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। एंड्योरेंस इज प्रैक्टिस। तो उसको ऐसे इन्वायरमेंट से एक्सपोज किया जाए जहाँ पे हल्का हल्का पेन उसको फ्रिक्वेंटली मिलता रहेगा, तो वो उसको प्रोसेस करना सीख जाएगा कि पेन को मेंटली प्रोसेस कैसे करना है। इट इज फिजिकली एंड मेंटली बोथ। Namaskar, I am interested to get admission of my children in your school. I would like to know whether we can get right sanskar value and moral value while studying in the school. Kindly let me know whether you have any planning in this concern. Yes, we are doing it. हमने इस बार धम्मा हॉल शुरू कर दिया जहाँ पे बच्चे मेडिटेशन कर रहे हैं। योगा कैंप हमारे 15 साल से ऊपर योगा कैंप चल रहे हैं। मैं विपस्सना करके आया तो मैंने बच्चों को मेडिटेशन सिखाया। हमारे सारे टीचर्स इस पे पूरा फोकस करते हैं कि हम जो बोल रहे हैं हम उनको करके दिखाएं। इट शुड नॉट बी, मतलब ये सिर्फ बातें बातें ना रहे, हम वैल्यूज पे डीपली काम करते हैं। और मेरी टीम भी ऐसी है जो वैल्यूज पे, वैल्यूज को जीती है, तो उनको देख के वो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच निखिल जी, थैंक्स अ लॉट। नितिका, विराज, ओपी ढाका जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Ajit ji. I think I have answered all the questions. Ashish, if any question I have missed, can you help me go through the entire chat? अगर कोई पीछे रहे तो नहीं गया क्वेश्चन ऐसा। Just give me a moment, sir. Okay, okay. Thank you, Dr. Sarita. Very good. You are trying a lot of things. Sir, we have a question from Mr. Saryu Sen, sir. Mm-hmm. Just the last comment. Last comment. Can you read it out? I'm not getting it. How to imbibe intelligence to choose proper healthy items in buffet as kids will choose junks. It's again habit. So what we are doing at home, if we are opting for healthy food at home and we are giving them option for healthy foods at home, definitely when they'll go out, they'll pick the healthy food. जो वो घर पे देखेगा जहां से उसकी सेंसिबिलिटी हो जाएगी, तो वो बाहर जाके भी जंक नहीं खाएगा, ये तय बात है। ये मैंने बहुत गहराई से इसको अनुभव भी किया है। और सिंपल अपने अपने एक स्कूल का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे स्कूल में हमने चॉकलेट बंद कर दी थी कि बर्थडेज पे बच्चे चॉकलेट नहीं देंगे और ड्राई फ्रूट्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वो इतनी सेंसिबिलिटी आ गई कि अब स्कूल में जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है तो दे डोंट डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स, बिकॉज वी डिस्कस दिस थिंग कि ये हमें करना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए, एंड वी फॉलो इट। थैंक यू दीपक जी, thanks a lot for your valuable time to listen to me. So yeah, I think it's the time to go now. It's 5 o'clock. Thank you very much for joining us this webinar. I hope and pray to Almighty that I'll be learning a lot of things and I'll keep on sharing with you people, and God give you the strength to implement the things and get the benefit of all the good things we have learned together. Before I say goodbye to you, I'm very glad to share this thing with you that we are launching our Finland-based model school on 19th of this month, and the entire week will be there to visit that extraordinary infra we have developed. So all of you are invited to visit from 19 to 26 to our school and see what we have created.
We'll be sending definitely cards and invitations, and we'll be reminding you through WhatsApp at all the channels. But it's my humble request to all of you to come to school after 19th of June to see what we have created for the next generation. So by that time, thank you very much. See you again. Thanks a lot and have a very good evening.